آپ کو تھوڑا بنیادی اعتبار سے لے کے جاؤں گا۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چوتھے آدمی ہیں جنہوں نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا ہے۔ یہ بنیادی باتیں آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین اسلام لانے والوں میں چوتھا انسان ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند فرمایا ہے۔ اور دوستو، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، یعنی جن کو بشارت ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، کچھ صحابی تھے 10 صحابی ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی بار جنت کی بشارتیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، عشرہ مبشرہ کے رکن تھے۔ رکن جانتے ہیں نا؟ نماز کے اندر اگر آپ نے کسی رکن کو چھوڑ دیا تو دوستو آپ کو نماز واجب الاعادہ کرنا پڑے گا، بسا اوقات آپ کو نمازی دہرانی پڑیں گی۔ رکن کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے رکن تھے۔ اسلامی کلمہ کو بلند کرنے والے چوتھے خلیفہ ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں کلمہ کو بلند کرنے والے چوتھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوستو، آپ کا نام عثمان ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے، اور آپ کا لقب ذی النورین کہلایا ہے۔ یہ تو بہت مشہور ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذی النورین کیوں کہا گیا؟ چونکہ دو نور اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں آپ کو ملی ہیں، دو نور ملا ہے آپ کو، اسی لیے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب نورین ہوا ہے۔ ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ ان دونوں بہنوں کی طرف سے آپ کو بڑا مقام ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جن کا نام اروا ہے، عبد المطلب۔ آپ ایک بات جانتے ہیں، ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے ابا کا نام عبداللہ ہے نا؟ اور عبداللہ کے ابا کا نام اگر میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں تو ڈائریکٹ کہیں گے عبد المطلب ہے نا؟ اتنی ہی جانکاری ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جانکاری کی باتیں ہیں۔ میرے نبی کے دادا کا نام، اصلی نام جو ہے دوستو وہ عبد المطلب نہیں ہے، شیبہ ہے۔ یہ کیوں پڑا ہے؟ ہاشم کے گھرانے میں جب اولاد پیدا ہوئے دوستو، ہاشم کے گھرانے میں جب شیبہ پیدا ہوا، ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے پردادا ہیں، حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور ان کا ایک بیٹا شیبہ تھا، وہ اکلوتا اکیلا رہ گیا۔ یہ مکہ المکرمہ میں رہے۔ جب عبد المطلب، یعنی ان کا نام اصل میں تھا مطلب، عبد المطلب نام نہیں تھا، عبد تو غلام کو کہتے ہیں، عبد کا معنی ہے عربی زبان میں غلام۔ دوستو، جب مطلب نے سوچا کہ ہاشم کا بیٹا جو ان کے والد کے انتقال کے بعد تنہا ہو گیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ہمارے بھتیجے کے رشتے میں آتے ہیں، بھائی خاندانی رشتے میں آتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب مطلب نے ارادہ کیا کہ شیبہ کو بلا کر لے کر آنا چاہیے۔ مطلب اپنی سواری پر گئے اور شیبہ کو بلا کر لے کر آ گئے۔ جب وہ اپنے علاقے میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے پیچھے والا، یعنی مطلب تمہارے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ یہ تمہارا غلام ہے، کیا تم اپنے غلام کو سواری پر بٹھا کر لے کر آ گئے؟ تو دوستو مطلب نے کہا کہ بھائی یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے۔
हाशिम के इंतकाल के बाद ये बेटा तने तनहा हो गया था। ये उन्हीं की नस्ल में से, लेकिन दोस्तों नाम मशहूर हो गया आपका अब्दुल मुत्तलिब, यानी शेबा नाम लोग भूल गए और शेबा नाम को किसी ने ध्यान में भी नहीं रखा, बस अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असली नाम शेबा है, अगरचे उर्फी एतबार से अब्दुल मुत्तलिब कह दिया गया है। आप जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब की एक बेटी है उम्मे बैजा। अब्दुल मुत्तलिब की बेटी का नाम उम्मे बैजा है और उम्मे बैजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फूफी कहलाई है, हकीकी फूफी। ये सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नानी है। दोनों रिश्ता एक हो गए। हमारे नबी का रिश्ता दोस्तों माँ के एतबार से भी सैयदना उस्मान गनी का है, वालिद के एतबार से भी सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन का रिश्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्द मुनाफ में जाके जुड़ जाता है। बैजा उम्मे बैजा बिन अब्दुल मुत्तलिब में माँ का रिश्ता जुड़ा है और अब्द मुनाफ में जाकर दोस्तों मेरे नबी का ख़ानदानी रिश्ता हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ा है। ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन के ख़ानदानी रिश्तेदारी और ख़ानदानी ताल्लुक़ है। लेकिन दोस्तों सहाबा एक अनोखा नाम है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन 24 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक तकरीबन 11 साल, दोस्तों 44 ईस्वी से लेकर 56 ईस्वी तक, इन तारीखों को याद रखिएगा। मैं इंशाअल्लाह आपको आगे बताऊंगा। सहाबा की तारीख याद रखना, नबी की तारीख याद रखना है। और जो लोग नबी की तारीख याद रखा करते हैं, खुदा की कसम वो दीन और दुनिया दोनों जगह के लिए कामयाब है। अल्लाह के नबी ने बशारतें दी हैं। अगर आप डायरेक्ट नबी को लेना चाहेंगे कभी नहीं मिलेंगे आपको। नबी का वसीला बगैर सहाबा के आप कभी पा नहीं सकते। नबी की निस्बतें बगैर सहाबा के कभी हासिल नहीं होगा। उन लोगों ने मालों की कुर्बानी दी, उन लोगों ने औलादों की कुर्बानी दी, दोस्तों वतन की कुर्बानी दिया, मट्टी की कुर्बानी दिया, इलाके की कुर्बानी दिया, आल औलाद सारी चीज़ों की कुर्बानी देकर अल्लाह के नबी का दीन आप तक और हम तमाम तक पहुँचाया है। इसलिए अगर हम सहाबा को छोड़ दें, अगर सहाबा का नक्शा अपनी ज़िंदगी से मिटा दें, तो याद रखिएगा आपका ईमान कामिल कभी नहीं हो सकता है। अगर आप कामिल ईमान वाले कहे जाएंगे तो सहाबा का नक्शा अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको उतारना पड़ेगा। दोस्तों अल्लाह के नबी के साथी सहाबा कहलाए, इतनी बात तो आप लोग जानते हैं। अभी मैं तकरीर में गया नहीं, मेरी दिली चाहत थी कि ये इस्लाम की बातें हैं, इस्लामी जानकारी बातें मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। दोस्तों अल्लाह के नबी के सहाबा, अल्लाह के नबी के साथी सहाबा कहलाए। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर दोस्तों ईसा रूहुल्लाह तक इतने अंबिया दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, किसी भी नबी के साथियों को सहाबा नहीं कह सकते आप। ये तारीख़ है, ये सहाबा का मकाम है। अल्लाह ने सहाबा का इतना मकाम बुलंद फरमाया, चाहे मूसा का साथी यूशा हो, जो चाहे अपने ज़माने के अंदर नबी बने, जिनके बारे में लिखा है दोस्तों, चाहे मूसा कलीमुल्लाह के मानने वाले बनी इसराइल कहलाए, हज़रत इब्राहीम के मानने वाले अपने अपने एतबार से उनके रफ़ाक़ा कहलाए, लेकिन ना तो मूसा के मानने वालों को मूसा का सहाबी कहा गया, न इब्राहीम के मानने वालों को इब्राहीम का सहाबी कहा गया, न हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों को नूह का सहाबी कहा गया, ना तो हज़रत शुएब के मानने वाले लोगों को उनका सहाबी कहा गया, ना तो हज़रत दाऊद के मानने वालों को उनका सहाबी कहा गया, ना और उनके बाद जो भी लोग नबी आए दोस्तों, किसी नबी के मानने वालों को तारीख़ इस्लाम ने सहाबा नहीं कहा है। सहाबा सिर्फ एक ही जमात को कहा। ये अल्लाह ने बड़ा मकाम सहाबा को अता फरमाया कि सहाबा चुने हुए लोग,
सहाबा चुनिंदा लोग, अल्लाह ने जिनको चुन लिया नबी के लिए, अल्लाह ने जिनको चुन लिया नबी की खिदमत के लिए, अल्लाह ने जिनको चुन लिया कुरान की हिफाजत के लिए, अल्लाह ने जिनको चुन लिया नबी की हदीसों के लिए, अल्लाह ने जिनको चुन लिया खुदा की कसम पूरी दुनिया के अंदर ईमान और इस्लाम को फैलाने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, ये इस्लाम की बातें हैं। किसी भी नबी के सहाबा को, किसी भी नबी के साथी को आप सहाबा नहीं कह सकते। सहाबा को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। जिन लोगों ने नबी का दामन थामा सिर्फ वही सहाबा, जिन्होंने आदम का दामन थामा वो सहाबी नहीं, अगरचे वो अच्छे हैं, अगरचे वो लोग भी ईमान वाले हैं, लेकिन दोस्तों सहाबा नहीं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। कुरान उठाकर देख लो, ये शाबाशियाँ अल्लाह ने आपको नहीं दिया है। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास। अगरचे आज हमारे जमात के साथी इन आयतों पर बयान करते हैं, खुदा की कसम ये आयत आपके लिए अल्लाह ने नहीं उतारी है। इस आयत करीमा का शाबाशी अल्लाह ने सहाबा को दिया है। कुरान करीम की कोई भी आयत जो उम्मत मुस्लिमा को दिया है बराह रास्त अगर अल्लाह ने वहां पर इनाम अता फरमाया तो दोस्तों मुराद सहाबा है। आप उनके बाद हो सकते हैं, आप उनके वसीले से हो सकते हैं, आप डायरेक्ट कुरान की आयतों की शाबाशी लेने वाले इतने बड़े नहीं बने। ख्वाजा सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी नहीं बने, गौसे पाक नहीं बने, बड़े बड़े औलिया अल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज को ये मकाम अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं दिया। ये मकाम तने तनहा के लोगों सहाबा वो हैं जो नबी के दीवाने बने हैं, लोगों सहाबा वो हैं जो नबी की हर अदा पर मर मिटने वाले हैं, लोगों सहाबा वो हैं जिन्होंने नबी की बात पर अपनी बीवियों को बेवा करके दिखाया है, लोगों सहाबा वो हैं जिन्होंने अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत में यतीम करके दिखाया है, लोगों सहाबा वो हैं जिन्होंने नबी की मोहब्बत में अपने वतन को छोड़कर गैरों के इलाके में जाके बसे हैं, लोगों सहाबा वो हैं जिन्होंने नबी की हर अदा पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करके ऐलान कर दिया नहनुल्लज़ी बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा, के लोगों हर अदा पर अगर नबी का कोई मर मिटा है खुदा की कसम वो सहाबा है। ये सहाबा की तारीख है। और दोस्तों सहाबी कहते हैं जिन्होंने बहालत ईमान अल्लाह के नबी को देखा हो, यह माना याद रखिएगा, जिन्होंने बहालत ईमान, ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देखा हो, ईमान की हालत में उनकी मौत हुई हो। ऐसा नहीं माल दौलत को लेने के लिए, माल गनीमत को हासिल करने के लिए ईमान लेकर आ गए, अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया खत्म